हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर है 9.6 वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन वाटर. What are the chemical properties of water? What are the physical properties of water? What is the constitution of H2O molecule? Okay, so basically you should know it's like very necessary to have a H2O in our daily life. Okay, as we are knowing that in human body it's around 65% is water. Okay, in many plants we have seen that in many plants it's around 90 to 95% constitution is water. Okay, so what I just want to say, as today, as we are knowing that H2 is like a very essential requires for the human beings as well as for the living creatures. So here we are knowing that most of our water source is we are getting that water from the H2O. What is the use source of H2O? So I can say it's oceans only. Okay, so around 97.33% portion. Okay, whatever water is there on the earth, or I can say around 97.33% water is present into the oceans. So remaining, I can say like around 3%, it's in a polar ice. Okay, it's in a polar ice. I can say rivers. Okay, river, lake. Okay, then atmospheric water vapor, atmospheric water vapor. Mainly we are consuming river and lake water much and more for our drinking water. Okay, so you should know about the physical properties of water, as we are knowing that at a like it's like colorless. Okay, and it's like colorless and tasteless लिक्विड. ओके, हमें पता है कि जो वाटर है वो कलरलेस और क्या है, टेस्टलेस लिक्विड है ना. लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, अगर उसके कंस्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जो है वो कौन सी चीज आती है. एक ऑक्सीजन का एटम जो होता है वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है. एक ऑक्सीजन का एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है. और यहाँ पे स्ट्रांगली उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं. स्ट्रांगली उनके बीच में कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं. इसीलिए एट अ लो टेम्परेचर they can be converted into the ice. It's like solid form of our water. Okay, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो ये सभी चीज. Okay, so here it's like showing I'm showing you a hydrogen bond between the water molecules. Okay, so due to hydrogen bond you should like know about one thing. Due to this hydrogen bond only, due to hydrogen bond only, our H2O is in a liquid form. हमारा जो H2O है वो कौन सा फॉर्म में है बच्चों, our H2O is in a liquid form where all other than all other hydrides or hydrogen sulfide, okay, they all are in a gaseous form. Okay, I can say it's like this. Okay, they all are on a gaseous form. Boiling point is higher for H2O. Why? Due to hydrogen bond only. Boiling point is very high. Are you getting my point? Yes or no? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटर की, बाकी बाकी सभी लिक्विड से हमारे जो वाटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी डिफरेंट है. जैसे कि इट हैज अ हायर स्पेसिफिक, इट हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट, हायर स्पेसिफिक हीट. इसके अलावा इट्स लाइक यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स अ डाइपोल मोमेंट, हैव अ हायर dipole moment. Okay, after that it has a higher thermal conductivity, it has a higher thermal conductivity. Okay, it has a higher, I can say, thermal conductivity. And then another thing is that another thing is that it has a high dielectric constant. उसके पास जो है dielectric constant भी बहुत ज्यादा है बाकी सब लिक्विड से. इसी की वजह से ये जो है वो यूनिवर्सल हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है. बहुत ही बढ़िया सा ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है. ये चीज आपको एक बार अच्छे से समझ में आनी चाहिए. ओके ओके
our body temperature is regulated. Our body temperature is regulated by water only. आपको पता है it has a high vaporization, it has a high heat of vaporization and heat capacity, and उसी की वजह से it is like very useful for our body portion और living natures के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, ये सुनो. दूसरी बात, ये पोलर इन नेचर है, तो क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, so as we are knowing that it's a polar solvent and that's why it's a polar solvent. और उसी की वजह से क्या होगा, उसी की वजह से लाइक पोलर सब्सटेंस और आयोनिक सब्सटेंस NaCl है, CH3OH है, ओके, after that H2SO4, KCl, they all ionic and polar compounds will be dissolved into the water. Water can dissolve these ionic and I can say polar compounds, okay, because like dissolves like. Now come to the point. अब मैं बात करना चाहूंगा अबाउट स्ट्रक्चर. इस एरिया में अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर, ये सॉल्युबिलिटी के बारे में बात थी, ओके, नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात की. अब क्या आया बताओ, अब क्या आया नेक्स्ट वन, हम क्या आया, इट्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ H2O. अगर हम लोग देखें तो, अगर H2O की बात करें तो इट्स sp3 हाइब्रिडाइज. कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज. सो व्हाट बॉन्ड एंगल शुड बी देयर, here it should be 109 degree 27 minute, but due to VSEPR, due to that repulsion, here the bond angle between HOH was found to be 104.5 degree. Okay, it's a 104.5 degree. And what about the bond length? So bond length is around 95.7 picometer. Okay, it has a 2 lone pair and 2 bond pair. It is attached with the hydrogen. It's a polar in nature. Okay, it's a polar in nature. It has a high tendency to form a hydrogen bond. Okay, now just come to the point. What about the ice? Okay, what about ice? Okay, so let me inform you what will happen. Here you can show one diagram. Okay, in this I have tried to show you like liquid form H2O and H2O present in ice form. It's in a liquid form, somewhat random, where there is a specific and very proper arrangement in ice. Why is it so? Because at a lower temperature entropy will decrease. And one another thing you can say, the void space is higher in the ice. अगर मैं बोलना चाहूँ ना आपको एक चीज, so density of ice is less than water. एक चीज याद रखना, हमें पढ़ने में ही आता था, at a 4 degree Celsius, at 4 degree Celsius, the density of water is a maximum. आपको पता है जब तालाब होता है, तालाब, तो जब बहुत ही ठंड होती है तो तालाब के ऊपर जो पूरा जो वाटर रहता है तालाब का, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बट नीचे जो पानी है इट विल रिमेन इन अ लिक्विड पोर्शन ओनली. और ये जो है यहाँ पे क्या होता है, फ्लोट होता है आइस. और इसी की वजह से जो लिविंग क्रिएचर्स है जो उसके नीचे है वो क्या होंगे, इट सरफेस विल प्रोवाइड लाइक थर्मल इंसुलेशन टू देम. थर्मल इंसुलेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस सरफेस. और यहाँ पे जो कोई भी है वो इजीली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. सो इट्स लाइक वंडरफुल थिंग अबाउट द नेचर. ये हमारा नेचर है कि ये सभी चीजें एग्जिस्ट करती है. आप सोचो किस तरह से गॉड ने जो है अच्छे से डिफाइन किया होगा, सभी चीजें छोटी छोटी चीजें केयरफुली डिफाइन की होगी. अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आप नीचे जाओगे ना, तब क्या होगा पता है, 4 डिग्री सेल्सियस से जब आप नीचे जाओगे तो आपका जो आइस है वो कुछ इस तरह से वो आपको दिखेगा. यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सरे में अगर इसको देखो आइस के स्ट्रक्चर को, तो आपको पता चलेगा योर वन ऑक्सीजन इज सराउंडेड. अब देखो एक ऑक्सीजन जो है, वन ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स. टेट्राहेड्रली वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से
और दो जो होते हैं अपने खुद के बॉन्ड से क्या करता है, टेट्राहेड्रली, वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। किसकी बात हो रही है ये, किसकी बात हो रही है ये, अबाउट द आइस। आइस में क्या होता है, आइस में क्या होता है एग्जैक्टली कि जब अगर टेम्परेचर अगर लेस टेम्परेचर है तो वो हेक्सागोनल शेप में आपको आइस के मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे, लेकिन बहुत ही लो टेम्परेचर पे वो क्यूबिक शेप में हो जाते हैं। और एक ऑक्सीजन जो होता है टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ आपको दिखता है। ओके, और दूसरी बात, यहाँ पे जो दो ऑक्सीजन होते हैं, आइस के जो दो ऑक्सीजन होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, आइस के जो दो ऑक्सीजन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 276 पाइकोमीटर है। याद रखने की ट्राई करनी है आपको ये, कि जो आइस के स्ट्रक्चर में दो पानी के मॉलिक्यूल है उसमें दो ऑक्सीजन के एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 276 पाइकोमीटर है। ओके, और दूसरी बात, ये वॉइड की वजह से क्या होता है कि ये जो वॉइड है उसकी वजह से ये कई सारे मॉलिक्यूल्स को इंटरनली अपने स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, वो इंटरस्टिशियली वो अरेंज कर सकते हैं ड्यू टू दिस वाइड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर विथ वाइड हॉल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आइस है वो उनमें वाइड ज्यादा है। ओके, यस और नो, और अप्रोप्रिएट साइज है इंटरस्टिशियली। ओके, तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें अभी हमने अब तक जो बात की, आप वीडियो को एक बार रिवाइज कर सकते हो पूरे वीडियो को, जिसमें हमने कौन कौन सी बातें की है भाई। उनमें अगर हम सबसे पहले देखो तो H2O का जनरल कंसिडरेशन देखा कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड देन अबाउट द solubility. आफ्टर दैट वी कंसिडर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल अबाउट द आइस। ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं तो वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट द chemical properties of water. So as we are knowing that it has, I can select main 4 properties. सबसे पहले इट्स एम्फोटेरिक इन नेचर। सबसे पहले क्या आएगी बच्चों, ऐसे चार्ट के फॉर्म में याद रखो, इजीली याद रह जाएगा। एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। दूसरा, इट्स अ redox reaction, it provides redox reaction, it take parts in a redox reaction. ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा बच्चों, हमारा थर्ड पॉइंट जो है होगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एंड द फोर्थ वन इज दैट हाइड्रेट फॉर्मेशंस। फोर्थ पॉइंट हाइड्रेट फॉर्मेशंस। सभी वन बाय वन हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। सबसे पहला हम क्या देखने वाले बताओ, सबसे पहला हम कौन सा देखने वाले हैं, इट्स लाइक एम्फोटेरिक इन नेचर। हम पहला क्या देखने वाले बच्चों बताओ, इट्स एम्फोटेरिक नेचर। एक बात बताओ, आपका जो H2O है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ये अमोनिया है, तो अमोनिया के साथ जब H2O रिएक्ट करता है तब यहाँ पे क्या बनेगा, NH4 प्लस, और प्लस क्या आएगा बताओ, OH माइनस। यस और नो, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और दूसरा आएगा H2O प्लस H2S। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस HS माइनस। आप देखो यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे आप देखो H2O है और अमोनिया है NH3, तो ये H प्लस को डोनेट करेगा और अमोनिया इसको एक्सेप्ट करेगा। So as H2O is donating H plus, it will act as an acid when we are going to treat it with a base. But whenever we are going to treat it whenever we are going to treat our H2O with a H2S, at that time our H2O will act as a base. How? Listen, here H2S will donate H plus to H2O and you will get H3O plus. So that's what, our H2O will act as a base as well as acid. It depends on the counter compound. सामने कौन है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट करेगा। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरी चीज रेडॉक्स रिएक्शन। As we have completed our 8th chapter, so as we are knowing that what is the basic priority of redox reaction. Okay, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है एग्जैक्टली तो चलिए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है। ओके,
So the second point is redox reaction. Okay, हमने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको आराम से पता चल जाएगा क्या होगा. If we are throwing sodium into water, अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम की वाटर के साथ, what will happen exactly? So sodium plus क्या आएगा, H2O. So it's a solid, it's a liquid. और ये क्या बना देंगे, NaOH plus H2. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन H2O sodium oxidation number will increase from 0 to +1, where oxidation step of hydrogen, oxidation number of hydrogen will decrease. So decrease from +1 to 0. So what I can say, there is a reduction of H2O molecule into H2. So H2O will act as a good oxidizing agent. Okay, H2O will act as a good oxidizing agent. Another redox reaction with a 6 mole of CO2, 12 H2O will reduce CO2 into C6H12O6 glucose molecule plus 6H2O and plus 6O2. Now you will say why you are writing 12H2 and 6H2. You can write 6H2O here. इन दोनों का आप डिफरेंस लेके यहाँ पे 6H2O लिख दो. बट यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 CO2 molecule 2 H2O is required. तो 6 CO2 molecule के लिए 12 H2O चाहिए ही चाहिए. अब समझो थोड़ी मेरी बात. ओके चलो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, F2 plus H2O की बात करें, ओके तो यहाँ पे क्या होगा, सो हियर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द H प्लस. अब मैं बैलेंस नहीं करूंगा, ओके वो आपको करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ कि क्या होगा. यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है. हाइड्रोजन विल अटैच विद द HF एंड यू विल गेट ऑक्सीजन, H2O विल बी ऑक्सीडाइज इनटू द O2. H2O का ऑक्सीडेशन होगा O2 में और इट विल एक्ट एज H2O का क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, H2 को क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. सो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. ये भी किसकी तरह एक्ट करने वाला है बच्चों बताओ, ये भी किसकी तरह एक्ट करने वाला है बच्चों, अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करने वाला है, वो एक्ट करने वाला है. ओके सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी. ओके so that one was the second point, like redox reaction of involving water. थर्ड की बात करें, इट्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. अब हाइड्रोलिसिस ऑक्साइड का हो सकता है, क्लोराइड का होता है, किसी भी चीज का हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें पानी ऐड करना है ना. उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पानी ऐड करने वाले हैं. तो देखते हैं क्या होता है उसमें एग्जैक्टली. ओके चलो अब यहाँ पे देखते हैं तो किस तरह से, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखते हैं. हाइड्रोलिसिस हम लोग क्या देख लेते हैं बच्चों, रिएक्शन देख लेते हैं. ओके तो उसमें क्या होने वाला है एग्जैक्टली, अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखें तब क्या होने वाला है अगर मैं बताऊं तो, यहाँ पे अगर P4O10 है, उसमें अगर हम लोग 6 moles of H2 ऐड करें, at that time what we will get 4H3PO4 means this one is a acidic oxide and we will, whenever we will hydrolyze it, we will get acid. It's a phosphoric acid, orthophosphoric acid. So whenever I can say phosphorus pentoxide, we are using it or we are hydrolyze it, we will get acid. Okay, the next point is SiCl4 plus, SiCl4 plus 2H2O. What I will get? Tell me exactly. Exactly, I will get SiO2 plus 4HCl. So silicon tetrachloride, I can say silicon chloride. Hydrolysis of it will provide you a silicon dioxide, SiO2. If you have azide, N-3 is there. Sorry, it's a nitride. If nitride is there and you are hydrolyzing it, you will get ammonia plus 3OH minus. So it's in a solid form, it's in a liquid form. Ammonia will remain in a gas form, and this one will remain in an aqueous form. Okay, yes or no, yes or no. So this one is like entire thing all about, it's all about hydrolysis reaction. It's all about hydrolysis reaction. If
acidic oxides are there. If you are going to hydrolyze it, you will get H3PO4. Okay, and if SiCl4 is there, and if you are going to hydrolyze it, you will get SiO2 plus 4HCl. If N minus 3 is there and you are going to hydrolyze it, you will get NH3 plus 3OH minus. So please remember these points. It's very very important. Okay, और एक बहुत ही बढ़िया सा point है, अच्छे से आपको याद रखना है. क्या होता है hydrate formation? What do you mean by hydrate formation? What do you mean by hydrate formation? ये क्या होता है hydrate formation? Okay, मैं आपको एक बात बताऊं. From aqueous solution, many salts can be crystallized. Many salts can be crystallized as a hydrated salt. As a hydrated salt. What it indicates कि जो salt होते हैं ना, उनके आसपास कौन रहते हैं? पानी के molecules रहते हैं. Okay, here पानी के molecules will associate with our salt. So I can say association of water is in a different manner. जैसे different manner में associate होते हैं, उसके according to उसके classification भी होते हैं. Association of water is of different types. Okay, अब थोड़ा सा एग्जांपल हम देखते हैं कितने टाइप्स का होता है. तो इट्स लाइक सबसे पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर. वो क्या होता है सर? कोऑर्डिनेटेड वाटर समझाता हूँ. देखो सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेटेड वाटर. उसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि आपका जो पानी का मोलेक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा. +3 इंटू 3Cl माइनस. तो यहाँ पे क्या होगा अगर आप एग्जैक्टली बात करना चाहो इसकी, तो कैसे होता है क्रोमियम H2O6. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो क्रोमियम है उसके आसपास टोटल 6 पानी के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ते हैं ऐसे. ओके, ये जो है आप कॉम्प्लेक्स चैप्टर में पढ़ोगे स्टैंडर्ड 11. इन स्टैंडर्ड 11 यू विल लर्न इट. और ये +3 है और उसके साथ 3Cl माइनस जुड़ते हैं. तो ये जो वाटर रहता है वो कोऑर्डिनेटेड वाटर है. ओके, ये क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है. दूसरा जो वाटर है वो कौन सा है बच्चों? इंटरस्टिशियल वाटर. दूसरे अगर वाटर की बात करें तो वो है इंटरस्टिशियल वाटर. उसमें क्या होता है कि आपका जो क्रिस्टल होता है वो ट्रैप्ड हो जाएगा. मतलब सपोज आपका जो क्रिस्टल होता है ना, उसके अंदर ही पानी के मोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाने वाले? ट्रैप हो जाएंगे. तो अगर आप समझो तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप हो गया. तो ये क्या होता है कि वॉइड में वो पानी का मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल वाटर. इंटरस्टिशियल वाटर मतलब देखो ऐसे BaCl2 है इंटू 2H2 है. तो ये जो है पानी का मॉलिक्यूल ट्रैप हो गया. मैं आपको दिखाऊं तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंटरस्टिशियल वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है हम देखते हैं एक बार. ये आप देख सकते हो कि ये पानी का मॉलिक्यूल है. वो जो क्रिस्टल में वो क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है. ओके, इन BaCl2 वो भी लिख देता हूं मैं. इन BaCl2. ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली ये आप देख सकते हो. यहाँ पे जो होता है ये बेरियम क्लोराइड होते हैं. तो उनके बीच में कहीं पे हमारे जो उनकी वॉइड होती है उस वॉइड में कौन रह जाते हैं? उनके वॉइड में कौन रह जाते हैं बच्चों? कहीं ना कहीं उनके वॉइड में पानी के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं. तब उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल वाइट्स, इंटरस्टिशियल H2O मॉलिक्यूल बोलते हैं. ठीक है. ओके,
ओके, यहाँ पे तो इन्होंने नहीं दे रखा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके, ये रहा, अब देख सकते हो ये वाला पॉइंट। ओके, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है बीच में। चलो नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो उसके बाद कौन था, थर्ड वन एंड लास्ट वन, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। अब ये क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, मतलब चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले तो आपको डाउट ना हो गई, ठीक है। चलो यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या, Cu H2O कितना रहेगा 4 + 2 एंड SO4 - 2 और इनटू H2O। तो ये वाला जो H2O है ना, याद रखना ये वाला H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। पता नहीं चलेगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको एग्जैक्टली, वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाटर है, अगर आप Cu की बात करो, Cu H2O4 है, तो मतलब Cu में भी कोऑर्डिनेट 4 जो है, Cu में टोटल 5 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। पूरा क्लियर करके अच्छे से समझने की ट्राई करता हूँ मैं। सपोज अगर ऐसा है CuSO4 × 5H2O, तब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसमें से इसके दो पोर्शन होते हैं, 4H2O जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 4H2O यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9.4 भी इससे सॉल्व हो जाएगा। और एक H2 होता है, तो ये जो होता है, ये जो 4 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड है। वो कौन से रहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेटेड। ओके, इट्स लाइक आई कैन से कोऑर्डिनेटेड वाटर है। जबकि ये वाला जो है H2O, वो कौन सा है बताओ, ये वाला H2O कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब आप थोड़ा सा समझो तो, अब आप थोड़ा सा समझो तो क्या होगा, तो यहां पे कुछ इस तरह से होगा, Cu ये 4 कोऑर्डिनेटेड। ओके, थोड़ा सा लिख लेना अच्छे से, फिर समझाने को नहीं मिलेगा भाई। ओके, OH2 एंड OH2, और उसके साथ कौन आएगा एग्जैक्टली, उसके साथ SO4 - 2 तो आएंगे, लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्ड से इनके साथ एक पानी का मॉलिक्यूल और जुड़ा होता है, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से एक और क्या जुड़ेगा बच्चों, पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। यस और नो, यस और नो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली उसको हम लोग क्या बोल देंगे बताओ, like hydrogen bonded water molecule. So there are 3 types of water molecules. One is like coordinated water, interstitial water, and the third one is hydrogen bonded water. In problem number 9.4, you can see this. Okay, here in a CuSO4 × 5H2, 4 water molecules are coordinated in nature, and one is hydrogen bonded. Okay, yes or no? Is it clear? Okay, so till now we have completed all about the, we have completed all about the water portion number 9.6. In next lecture we will see about the hard water and soft water. Okay, so thank you very much for your concern and your time.